This morning we had a Congress Working Committee meeting at the residence of the Congress President. The Congress President presided over the meeting. Dr. Manmohan Singh ji was present. Vice President of AICC, Rahul Gandhi ji was present, and Anthony ji, Chidambaram ji, Mukul ji, and everybody, all senior, almost everybody was present in the working committee. We had agenda proposed for the Congress Working Committee to discuss, and we disposed of the agenda. The meetings of the previous working committee were approved, condolence resolution, and then opening remarks by the Congress President, which I am going to circulate, which is the most important because it will cover almost everything what we discussed. And once I am done with few points in Hindi, after that I am going to circulate the opening and also the presidential remarks of the Congress President, in which the former Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, also spoke. What he all spoke is also in the written form, which we are going to circulate among the honorable members. We also discussed the schedule was approved for the organizational elections, the upcoming presidential and the election of the Honorable President of India and the Vice President was briefly discussed because very recently we had a all-party meeting. Congress President Mrs. Gandhi hosted lunch for all the senior leaders and party functionaries of opposition parties in the parliament, and it was decided in that meeting that we should have a small subgroup, and that subgroup should discuss as to how to go about the president and vice president election. Now, about 2 days back, the Congress President has, of course, not in the capacity of a Congress President, but since she hosted the lunch and everybody wanted her, that is very difficult to decide here. Let the small group be constituted, and that small group has been constituted, and I'm sure within weeks' time we will have a meeting of that small group. Then there was a discussion on the present situation prevailing in the state of Jammu and Kashmir. So this was the agenda. As I said in the beginning, I think most of the points are covered in Mrs. Gandhi's opening remarks. But what all was discussed and where almost most of the honorable members participated, I would like to just draw the attention of the media person. सबसे पहले तो इसरो को बहुत बहुत बधाई दी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से कि पिछले 60 साल में जो इसरो ने काम किया है, और कांग्रेस सरकार ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने जो एक सपना देखा था इसरो के लिए, आज वो सपना हमें साकार नज़र होते दिख रहा है, और आज उसका फ़ायदा न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया उठा रही है। और इन 60 सालों में जो इसरो ने प्रगति की है उसको बधाई दी है, और पूरी आशा के साथ कि आने वाले समय में इसी तरह से वो काम करते रहेगा। 3 साल एनडीए के सत्ता में पूरे हो गए। एनडीए चाहे कितना ही खुशियां मनाए, सरकारी पैसे का कितना ही दुरुपयोग करे, खुशियां मनाने के लिए सरकारी बजट कितना ही उसके लिए इस्तेमाल करे,
चाहे 24 घंटे वो टेलीविजन पे ही सारा मंत्रिमंडल अपने आप को बधाई देता रहे, लेकिन भारत की जनता के लिए, देश के लिए ये 3 साल निहायत ही निराशाजनक रहे। इन 3 सालों में एनडीए की सरकार में डर, खौफ, भय के बगैर और कुछ नहीं दिखा। और ये डर और खौफ और भय किसी एक व्यक्ति या विपक्ष की सरकारें तोड़ने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस देश के दलित, शेड्यूल्ड ट्राइब, महिलाएं, अल्पसंख्यक, जिस डर और खौफ का, भय का शिकार हो रहे हैं, मीडिया जो सरकार की लाइन टो नहीं करती है, उसका एक हमने नमूना कल 24 घंटे देखा है। और वैसे 3 साल से बेचारे लोग जो दबे हुए कह नहीं सकते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसका एक नंगा नाच कल हम देख रहे थे कि जहां लाखों हजारों करोड़ बैंक का बकाया कई लोगों के पास है, उससे हिंदुस्तान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक टेलीविजन चैनल से 50 करोड़ से ही हिंदुस्तान की सरकार हिल गई, ऐसा उन्होंने दिखाना पेश किया है। दलितों के साथ अभी क्या हुआ सहारनपुर में देख रहा और रोज देख रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ वो 3 साल से देख रहे हैं। और हमारी बहनों, बहू, बेटियों के साथ जो 30% वृद्धि हुई है क्राइम में, अपने आप में एक मिसाल है। आज इस देश की बहू बेटी, उसको बाहर निकालना, घर से निकलना मुश्किल हो गया है इस एनडीए की सरकार में। ये सरकार आई थी एक स्लोगन के साथ, एक नारे के साथ, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट किया इन्होंने। ये सिर्फ नारों और पब्लिसिटी की सरकार है, जो टेलीविजन में तो हीरो दिखती है, लेकिन जमीन पे, जमीनी कामों में जीरो है। नौजवानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। करोड़ों नौजवान काम मांगते हैं, उनसे वादा किया गया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में कि 5 साल में 10 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और 1 साल में 2 करोड़। नया नौकरी तो किसी को मिली नहीं, रोजगार बिल्कुल किसी को नहीं मिला। लेकिन जो करोड़ों लोग जिनमें पढ़े लिखे भी थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में जो काम करते थे, मेसन से लेकर, मजदूर से लेकर, कारपेंटर से लेकर, वो आज करोड़ों बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। तो जो पहला एम्प्लॉयमेंट था वो भी खत्म हुआ और नए एम्प्लॉयमेंट जीरो है। फार्मर्स की आज जो हालत हो गई है, किसानों की, CWC ने किसानों के साथ अपनी पूरी सहानुभूति दिखाई है। यूपीए सरकार किसानों की हमदर्द थी, इसलिए उतना उत्पादन बढ़ता था। एनडीए सरकार ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में वादा किया था कि उनको
जो भी उस पे उत्पादन या अनाज पैदा करने में पैसा लगता है, उसके ऊपर 50% और फायदा होगा, उसका एमएसपी बढ़ाएगा। लेकिन वो तमाम वादे झूठे निकले। यही कारण है कि आज हर साल 12,500 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। पूरे देश में किसानों में अफरा तफरी है। कहीं ड्राउट है साउथ में और कहीं किसान हत्या करते हैं। आज भी एजिटेशन महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे चल रही है और सरकार बजाय उनके साथ सहानुभूति दिखाने के उन पे लाठीचार्ज करती है, जुल्म करती है। कीमतें इन 3 सालों में आसमान को छू रही हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस गिर गए हैं, यहां गिर गए हैं क्रूड ऑयल की वजह से, लेकिन उसको आगे नहीं देते हैं। उस पर सरकार पैसे कमाती है, उसकी वजह से भी प्राइस राइज होता। एक बहुत बड़ी चीज पिछले साल नवंबर ने इस एनडीए सरकार ने अपने आप को शाबाशी दिलाने के लिए डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की स्कीम की थी। कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्टी के बाहर, देश के पूरे विपक्ष ने पार्लियामेंट के अंदर और पूरे पार्लियामेंट के बाहर, हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और हमारे भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम सदन के अंदर बताया था इसकी बहुत हमारी इकोनॉमी पर, भारत की इकोनॉमी पर, भारत की जीडीपी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन सरकार ने हमारी उन तमाम बातों को नकार दिया था और आज 1 साल के अंदर ही, 1 साल से भी कम, 6 महीनों के अंदर अंदर सरकार को मानना पड़ा कि जीडीपी पे कितना नुकसान हुआ है और हमारे देश को कितना नुकसान हुआ है। इन 3 सालों में जॉब क्रिएशन, जैसे मैंने कहा, कि नील हो गया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। नौजवान इस वक्त जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ रहे हैं, उनके सामने निराशा के बगैर कुछ भी नहीं। एनडीए सरकार ने किसानों, मजदूरों, नौजवानों, गरीबों, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, इनके साथ जो सलूक किया है वो शायद बीजेपी की आंखों पर और एनडीए की आंखों पर काला चश्मा लगा है और सरकार के नशे में वो उसको दिखाई नहीं देता। सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग शायद पूरी दुनिया के लोगों ने नहीं किया होगा, जहां जालिम से जालिम सरकारें होंगी, उतना सिर्फ इन 3 सालों में उन सरकारी मशीनरीज का लोगों को हरास कराने में, डराने में, धमकाने में, वॉइस ऑफ डिसेंट कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस वॉइस ऑफ डिसेंट को ये सरकार नहीं मानती है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को ही नहीं मानते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए पहले वो बांटने के लिए नहीं कहा, वही बांटना चाहे था, लेकिन चूंकि उसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी थी, तो इस बीच में हमारे जो अलग अलग साथियों ने, अलग अलग वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, ये अलग अलग वर्किंग कमेटियों ने अपनी
बातें उठाई थी कि ये तमाम चीज़ें आज देश में हो रहा है, तो ये उन मेंबर्स की तरफ से मैं आपको ब्रीफ कर रहा था।